Good evening, friends. Welcome to Ahmedabad Management Association. We welcome you all to listen Sri Ved Prakash ji, who is the District Railway Manager of Ahmedabad. He is the officer, but I would say that he's a fine human being, perhaps. And that is why he understands what his responsibility is, and he is doing it in a very nicest way. He's a man of few words, but more action. And that is why I am taking this opportunity to introduce him in few words only. Thank you very much, sir, for accepting our invitation in just first meeting only. We are extremely thankful to you on behalf of all of you and Ahmedabad Management Association. I am thankful for being with us. Shri Ved Prakash is the Senior Indian Railway Traffic Service IRTS officer of the 1998 batch, and he has assumed charge as Divisional Railway Manager of Ahmedabad Division Western Railway 2 months back. In his earlier role as officer on special duty to the Union Minister of Railways, Sri Ashwini Vaishnav, and he was instrumental in designing strategic communication initiative and coordinating over 1,000 high-impact events, including major train inaugurations, foundation stone-laying ceremonies, and the redevelopment of Amrit Bharat station. His leadership was also pivotal in organizing landmark railway gatherings such as the March 2023 event that witnessed the participation of more than 6 lakh people. An alumnus of St. Columba College, Hazaribagh, with a BSc Honours in Geology, he has also undergone a management development program at the National Academy for Indian Railways, Vadodara. With his rich experience and proven track record, he is expected to drive efficiency, innovations, and stronger public connect in the Ahmedabad division. We are sorry, here with your presence in Ahmedabad and Gujarat, we will certainly benefit with your knowledge and your experience. With this, I would welcome once again, and I request him to share his ideas, views, and how the Indian Railways is being transformed in modern context. Thank you, sir. Thank you. Yes, on behalf of Ahmedabad Management Association, I welcome with our memento. Dear colleagues and the August gathering, this small presentation is not only of the railways but the story of success of India. India's growing at a consistent 6.8% rate. Only for the COVID 2 year, it was a dip, but 7.48 2014 onwards, and still it is at a higher year. We will compare with all the developed and other European countries and other developed countries, they are at a very crisis stage. Why? That I will explain later. Inflation under control, 6.7 to 1.6. Healthy balance sheet, percentage of GDP, government liabilities is less than 60, that's the mark. Internal debt 55% and external debt only 2%. Investment in social sector, 1.34 billion, means 11.2 lakh crore. The percentage increase in last 4 years is more than 2x. And this investment has a multiplier effect. This is the leadership. जब किसी इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट होता है तो इंफ्रा का जो चेन इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ता है, दैट इज अलग अलग मॉडल हैं, लेकिन एवरीवन एक्सेप्ट कि 3.5 तो होता ही होता है, 5 टाइम भी होता है. रेलवे में इन्वेस्टमेंट हुआ तो 5 टाइम वो इकोनॉमी में रोल करता है. 11.2 लाख करोड़ कैपेक्स मीन्स 39.2 11.5 के आसपास मैंने मल्टीप्लाई किया. इकोनॉमिक एक्टिविटी और 1.6 करोड़ एम्प्लॉयमेंट इट हैज जनरेटेड. इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट रेटिंग अपग्रेडेशन इन 18 years और वो BBB की कैटेगरी में वी आर नाउ.
the fourth largest economy of the world. First is US, second is China, Germany, third, and India is fourth. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट का जो पैटर्न जो मैंने दिखाया स्टार्टिंग के चार्ट में, दैट वाज द की. जब कोविड के समय में जब सारी इकोनॉमी वर्ल्ड की लोगों को हेल्प करने का सोच रहा था, तो पीएम साहब का ये आइडिया था कि हाउ टू मेक द सिस्टम रोलिंग कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रुके नहीं. तो आपको याद होगा कि सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लोन के प्रोविज़न किए गए और बोला गया कि आप इतने अमाउंट तक का पैसा निकालो और उसको अपने घर के बनाने में खर्च करो, गाड़ी खरीदने में खर्च करो, तो हम आपको अलाउ करेंगे. इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो लोग उससे रिलेटेड थे, जैसे घर बना रहे हैं तो छड़ बेचना, जो रॉड्स होता है वो, सीमेंट होता है वो, जो बालू होते हैं वो, इससे रिलेटेड जो ट्रांसपोर्ट ट्रक्स के टिपर्स हैं, जो मजदूर है जो काम करेगा घर में, उसको नौकरी मिलने लगा. तो डिस्पाइट बीइंग कोविड, हर गवर्नमेंट ऑफिसर्स पैसा निकाला अपने इसमें और उसने यूज़ किया, मैंने भी किया. तो दिस इज़ द थॉट प्रोसेस. जहाँ गवर्नमेंट ये सोच रही थी दूसरी जगह कि भाई सबको घर पे बैठा दो और घर पे किसी तरह का असिस्टेंस दो, खाने का असिस्टेंस दो, उस समय हमारी गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इन्वेस्टमेंट में कैसे जाया जाए, कैसे जो इस सेक्टर में थे उसको एक बबल, बायो बबल का क्रिएट किया गया कि भाई ये एरिया पूरी तरह से अगर अलूफ है तो उसको एकदम उसी में अलूफ करके उससे काम कराया गया. तो बी वेयर पार्ट ऑफ दैट. यू विल बी सरप्राइज कि जब कोविड था तो जो लोग बॉम्बे में, गुजरात में, सूरत में, जो डेवलप्ड है इंदौर में, जो काम करते थे, जो लेबर्स और जो टेक्निकल लेबर्स थे, जब वो अपने घर को गए तो दे वर अनएम्प्लॉयड. उनको पिक किया गया, उनको खोजा गया, गांव-गांव की मैपिंग कराई गई और फिर ऐसे प्रोजेक्ट में उनको डाला गया कि आपके पास एक्सपर्टाइज है, आप घर में काम करना चाहते हो, यू वर्क देयर, अर्न देयर, सो दैट की इकोनॉमी रोल करे. इसका रिजल्ट है, इन लास्ट 11 years वी हैव एडेड 58,000 किलोमीटर ऑफ हाईवेज, एडेड 37,500 किलोमीटर ऑफ रेलवे ट्रैक. दिस इज इक्वलेंट टू एनी ऑफ द साउथ अफ्रीकन रेलवे और एनी ऑफ द बिगर रेलवेज, जर्मनी रेलवे, सबके बराबर है. इट्स अ ह्यूज क्रिएशन. डबल द एयरपोर्ट बाय बिल्डिंग 86 एयरपोर्ट्स. रेलवे कार्गो 1 बिलियन टन to 1.6 बिलियन टन. इन्वेस्टमेंट बहुत थॉट प्रोसेस था कि रेलवे इसके पहले जो इन्वेस्ट करती थी, रेलवे का अपना बजट होता था. लोगों को बहुत अच्छा लगता था कि भाई रेलवे का अपना बजट है. हमसे ज़्यादा, रेलवे से ज़्यादा बजट डिफेंस का है, रेलवे से ज़्यादा बजट एग्रीकल्चर का था. लेकिन रेलवे अलग से बजट थी क्योंकि ब्रिटिश इरा से ये चला आ रहा था और वी वर थिंकिंग कि ये हमारे लिए अच्छा है. लेकिन ये अच्छा नहीं था क्योंकि रेलवे जितना अर्न करती थी और जितना इन्वेस्टमेंट करना होता था तो वो मैच नहीं करता था. अब उसके चलते क्या है कि रोड आप अननेसेसरी डेवलप कर रहे हो जहाँ की रेलवे डेवलप करना चाहिए, क्योंकि रेलवे इज मच मोर चीपर and environmentally also very much suitable than road or any of the airways. 2013-14 में it was only 29,000 करोड़, 29,000 करोड़ बस. 2024-25 में it is 2,53,261 करोड़ the GBS is. ये इसलिए संभव हुआ कि दोनों बजट को मर्ज कर दिया गया, नॉर्मल बजट को और रेलवे बजट को. अदरवाइज हम अभी रेलवे उसी में लड़ती रहती कि पैसा कैसे लाए. रेलवेज के एम्प्लॉयज सबसे ज़्यादा हैं. द टोटल अर्निंग ऑफ रेलवे इज समथिंग अराउंड 2,60,000 करोड़ और हमारा जो आउटलेट है, जो हमारी लिएबिलिटी है, वो हमारे एम्प्लॉयज़ 1 लाख करोड़ जिनमें पैसा जाता है. 60 लाख करोड़ हमारा इसमें जाता है हमारे पेंशन्स को देने में.
जो फ्यूल है उसमें जाता है करीब 40 लाख करोड़। तो ऐसे करके हमारी जो मार्जिन है अभी के समय में ओनली एंड ओनली इट इज 3,000 to 4,000 करोड़, दैट सरप्लस वी हैव। अगर इस सरप्लस से लेकर के अगर हम प्लानिंग करते तो वी विल हैव ओनली 4,000 करोड़, जो कि पहले 29,000 करोड़ जीबीएस का होता था, और 4,000 करोड़ में कुछ नहीं होता। तो जब मर्ज किया तो उसका फायदा है कि वी आर गेटिंग 2,53,000 करोड़। और इसके चलते जो चेंजेस हुआ, सेम इज विथ ऑल इंफ्रा, 2,53,000 हमारा है, करीब करीब 2,60,000 के आसपास रोड का है, एयरपोर्ट का, ऐसे मिला करके टोटल 11 लाख करोड़ का है टोटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट से का इंफ्रास्ट्रक्चर में। इन्वेस्टमेंट इन गुजरात, पहले जो 500 करोड़ होता था, नाउ इट इज 17,155 करोड़, 29x। मैं वो बता रहा हूँ जो एक स्टेट को केवल एग्जांपल देने के लिए दिखाया है। ये इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमको गवर्नमेंट को मिला, अदरवाइज वी वुड हैव बीन इन द सर्कल कि भाई पैसा हमारे पास आ नहीं रहा है, फिर मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, तो फिर कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। आप देखो, पहले 29,000 करोड़ पूरा होता था, और 29,000 करोड़ में जहाँ के मिनिस्टर होते थे, रेलवे मिनिस्टर होते थे, वहाँ पैसा खर्च होता था। जैसे कि ममता बनर्जी थी तो वहाँ पे 20,000 करोड़ जाएगा। पासवान साहब थे, रामविलास पासवान साहब, तो वहाँ बिहार के लिए 10,000 करोड़ जाएगा। शरीफ साहब थे तो कर्नाटका के लिए 10,000 करोड़ जाएगा। तो पूरे कंट्री को कुछ नहीं मिलता था, द पीनट्स दे वर गेटिंग। अभी आप सोचो कि 17,000 करोड़ जो ओवरऑल बजट है उसका ऑलमोस्ट 75% केवल और केवल गुजरात को मिल रहा है। और दिस इज ओनली द रेलवे पोर्शन जो कि इस साल मिल रहा है। प्रोजेक्ट जो गुजरात में चल रहे हैं 1,34,000 करोड़ के, 36 प्रोजेक्ट, 2,564 किलोमीटर्स का टोटल लेंथ, 88 अमृत स्टेशन बेसिकली डेवलप कर रहे हैं हम। बुलेट ट्रेन का 17,000 करोड़ का है, डीएफसी का 18,000 करोड़ का है, आरओबी 335 हम लोग डेवलप कर रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसका है फायदा कि आज वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हम चला पा रहे हैं। किसी कंट्री का किसी एक स्टेशन का डेवलप करना एक बड़ी चीज होती है। टोक्यो हो या बर्लिन हो, जिसने स्टेशन डेवलपमेंट किया उसमें पूरा 5 साल 6 साल बंद करना पड़ा, उसको 10 साल बंद करना पड़ा। आज हम ट्रेन चला रहे हैं और स्टेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं वर्ल्ड का। अहमदाबाद उसका उदाहरण है। देयर आर इन नंबर ऑफ स्टेशंस वी आर मेकिंग। और ये इसलिए संभव हुआ कि नाउ इन्वेस्टमेंट इज देयर, बजट एक हो गया और हम कंट्री को डेवलपमेंट का सोच रहे हैं। टोटल इंडिया के में स्टेशन है हमारे 8,000 स्टेशन भी है। जो अमृत स्टेशन है वो 7 स्टेशन डेवलपमेंट की लर्निंग हम लोगों ने लिया। गांधीनगर, रानी कमलापति, गांधीनगर जो है सबसे पहला स्टेशन जो स्टेशन डेवलपमेंट का था, उससे लर्निंग लिया गया कि पहले बना करके कि इसको कैसे करेंगे, क्या फ़ायदा होगा, बाकी को क्या बेनिफिट मिलेगा। रानी कमलापति, फिर सरैया टर्मिनल जो बेंगलोर में है, अयोध्या जी, चरलापल्ली, अलग अलग स्टेशन टाइप थे, छोटे हैं स्टेशन, तो उसमें हम गांधीनगर जैसा नहीं डेवलप कर सकते। गोमती नगर, खुर्दा रोड, और इसकी लर्निंग के बेसिस से वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1,337 टोटल स्टेशन वी आर डेवलपिंग। 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसमें, और 109 स्टेशन का पीएम साहब ने इनॉग्रेशन किया हुआ है। 100 स्टेशन का लिस्ट और बना हुआ है, 100 स्टेशन का फिर दिसंबर में करेंगे। ऐसे ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अमृत भारत गुजरात में 88 स्टेशन है, 88 स्टेशन है, जिसमें 18 स्टेशन ऑलरेडी इनोग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर ऑन 22 मई 2025। 18 स्टेशन जो हैं उनका नाम मैंने दिया है इसमें। अहमदाबाद के 16 स्टेशन हैं अमृत भारत के स्टेशन में डेवलप हो रहे हैं। जो बड़ोदरा एरिया है उसके 9 हैं, सूरत के 17 हैं, राजकोट के 33 हैं,
गांधीनगर के 9 हैं, कच्छ के 4 हैं। अहमदाबाद जो पहले था कंजस्टेड था, बहुत मुश्किल है लोगों को आना, बहुत सारे केसेस होते थे। अभी जो डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है वो दिखा रहे हैं, ये साउथ साइड का कालोपुर सर का एरिया है। ऑलरेडी 2 स्टोरेज का काम हो गया है ऊपर। ये जो एरिया दिखा रहे हैं ना, ये इस एरिया में ये पीछे से जाने का है, इसमें हम लोग ऊंचा बिल्डिंग बनाए, 7 स्टोरेज बिल्डिंग बनाई। नीचे का अगर लॉन्ग ये बन के तैयार हो गया, पहला स्टोरेज बन के तैयार हो गया, दूसरा स्टोरेज इसको देखिए ऑलरेडी गरज हो गया, तीसरे पे भी काम। तो फिर अभी जो स्टेशन है उसकी जो मेन स्टेशन चल रहा है उसको तोड़ करके उसके लोगों को यहाँ लाएंगे, फिर वहाँ काम स्टार्ट करके वहाँ आगे ले जाएंगे। ये होगा हमारा अहमदाबाद का स्टेशन। मतलब ये इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्कोर्स वाला एरिया होगा, पूरा का पूरा 600 मीटर के ऊपर कॉन्कोर्स होगा। और इसमें जो बीच में जो मीनारेट्स दिख रहा है, झूलता मीनार का पार्ट और उसका एस्पेक्ट, तो उसमें चूँकि वो मॉन्यूमेंटल है ये हमारा, और बेसिकली हेरिटेज ये है, तो उसको केयर करते हुए उसके 100 मीटर रेडियस में कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा डिज़ाइन बनाया गया। मोडेरा का गेट का डिज़ाइन हम लोग ने बनाया है। इसका मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन होगा पूरी तरह से, AMTS से, GSRTC से, मेट्रो रेल से, बुलेट ट्रेन से, BRTS से और टैक्सी से। साबरमती का हब, साबरमती स्टेशन ऐसा बनेगा और ये बुलेट ट्रेन से पूरी तरह से जुड़ जाएगा। वो जो ये आ रहा है, ये बुलेट ट्रेन के पास से आ रहा है। ये जो ब्रिज है ना, ये बुलेट ट्रेन का जो मल्टी हब स्टेशन है, बुलेट ट्रेन का मल्टी हब स्टेशन है, उससे आ रहा है। ये हमारा स्टेशन होगा। अभी दिखाते हैं कितना काम हुआ है। ये पुराना साबरमती का बिफोर डेवलपमेंट, साबरमती का जो काम हुआ है उसमें, ये जो बुलेट ट्रेन का अब पूरा डेवलप हो गया। साबरमती अगर गए होंगे आप लोग तो देख रहे होंगे कि ये एरिया जो है वो इस साइड जो स्टेशन बिल्डिंग दिखाए थे वो पूरा बनके इधर तैयार हो गया। इधर से आकर के आप स्टेशन पे आ सकते हैं। ये पूरा यहाँ तक जुड़ गया है। ये एरिया ऑलरेडी बन गया है जिसमें कि 6000 लोग आराम से वहाँ पे होल्ड किए जा सकते हैं। अब जो भी लोग जाएंगे, इसको हम लोग सोच रहे हैं कि दीपावली के पहले वी विल स्टार्ट, तो उनको एक्सकलेटर से और सीढ़ियों से और लिफ्ट से दे कैन गो एट द रूफ प्लाजा, ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से सीधे सीधे वो जा पाएंगे। अभी जो अल्टीमेट एम है हमारा कि यहाँ पे 37 मीटर का FOV, जैसा कि रानी कमलापति कोई गया है कि आप लोगों में से कोई देखा है, तो ऊपर का जो एरिया है उतना एरिया इसमें, और ये 100 मीटर तक एक्सटेंडेड है, उससे बहुत अच्छा, बहुत चौड़ा। वो एक बड़ा सा पाथवे बनेगा जो इससे लिंक हो जाएगा इसी स्टेशन बिल्डिंग से, तो लोग सीधे सीधे उस पर जाएंगे और जिस प्लेटफॉर्म में जाना है उस प्लेटफॉर्म में बाई एक्सीलेटर उतर जाएंगे। तो ये डेवलप हो रहा है। इसका जो 6-7 का प्लेटफॉर्म के ऊपर ये काम हो गया है, ऊपर के कवर बन गए हैं, और उस साइड आगे बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। ये एरिया जो बना हुआ दिखा रहे हैं, ये ऑलरेडी 6-7 के ऊपर कवर लग गया है, उसके ऊपर ये बन गया है, लेकिन अभी इसको यूज नहीं कर सकते जब तक कि हम इसको साबरमती जेल साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जेल साइड या उसके साइड से हम लोगों को लेके कनेक्ट करेंगे तभी यूज कर पाएंगे, लेकिन काम बहुत तेजी से चल रहा है। साबरमती आफ्टर डेवलपमेंट, न्यू भुज का देखिए स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है। न्यू भुज का जो डिज़ाइन है, अल्टीमेट डिज़ाइन ये बनेगा। आप देखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर करीब करीब बन के तैयार हो गया, सेम स्टाइल में, सेम इसमें। और ये 1-2 स्टेशन नहीं हुआ है इंडिया का, 8000 स्टेशन में 1300 स्टेशन पे काम चल रहा है। मतलब हर छठा स्टेशन जो है वो डेवलप हो रहा है। तो वो आप किसी भी इसमें होंगे, अगर आप भारत के नागरिक हैं और आप कहीं से भी रिलेटेड हैं, तो यू विल हैव अ बेनिफिट ऑफ स्टेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सामाखाली जंक्शन का स्टेशन,
रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, दिस इज अनदर सक्सेस स्टोरी। और जो 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 हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन का ये है, इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ये है वो, हाँ, जो इलेक्ट्रिफिकेशन का ये है कि जब 2014 में टोटल जो एरिया था वो केवल 20,000 किलोमीटर हमारा इलेक्ट्रीफाइड था। पिछले 11 साल में 47,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई किया गया। मतलब अगर एक जर्मनी रेलवे को समझे तो उसके पूरे बराबर इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया। भारत, इसीलिए मैं इन वर्ल्ड के मैप में आपको दिखा रहा हूं कि वर्ल्ड के मैप में भारत इज द सेकेंड बिगेस्ट इलेक्ट्रीफाइड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। चाइना सबसे बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखें तो इंडिया इज टॉप। 99% एरिया हमारा इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। इसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाने की कोशिश की है कि अलग अलग कलर का ये कि कौन सा कितने परसेंटेज में है। तो ग्रीन इज 100%, तो ये मतलब ग्रीन इज मोर देन 90 हमारा है। और यहाँ पे एक स्वीडिश रेलवे है, वो उसका 98% है। उसको छोड़ करके वर्ल्ड में कहीं भी ग्रीन, जो डीप ग्रीन है वो कहीं नहीं है। एवरेज पूरे वर्ल्ड का 47% है। अमेरिका की बहुत ही खराब हालत है, अब अफ्रीका तो ये सब तो है ही नहीं। तो वर्ल्ड के लिए भी और इसके लिए भी वी आर डूइंग वेरी मच। ट्रैक्स जिसके प्रति आप लोग इंटरेस्टेड हैं, 508 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 156 और गुजरात में 352 किलोमीटर। स्टेशंस 12 होंगे, महाराष्ट्र में 4 होंगे और गुजरात में 8 होंगे। वापी, बिलोमेरा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। बीकेएससी स्टेशन 9 स्टोरीज बिल्डिंग बनेगा, ग्राउंड से 32 मीटर ऊंचा होगा, नीचे होगा सॉरी, और एवब ग्राउंड के 65 मीटर होगा, 22 फ्लोर के होंगे टोटल। अहमदाबाद मुंबई ट्रेन जो है वो बेसिकली हर 20 मिनट में सर्विस चलेगी और इट विल टेक ओनली 2 आवर एंड 7 मिनट्स। 2 घंटा 7 मिनट में आदमी यहाँ से मुंबई पहुँचेगा, या मुंबई के लोग यहाँ आएंगे, दिन भर काम करेंगे और फिर लौट जाएंगे। और ऑल स्टॉप ट्रेन होगा जो 2 घंटा 58 मिनट में जाएगा। हर जो इतने जो 12 स्टेशन है सब जगह रुकते जाए तब भी 2 घंटा 58 मिनट ही लगेगा। तो दिस विल बी ग्रेट बूस्ट टू द कंट्री और द गेस्ट। ये, और आप सरप्राइज होंगे कि जितना काम हो रहा है बुलेट ट्रेन में, 320 किलोमीटर का वायाडक्ट बन के तैयार हो गया। बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट का है डिटेल वो दिखा रहे हैं कि कैसे वायाडक्ट बनकर तैयार हो गया है। करीब करीब बहुत अच्छे पोजीशन में अंडर सी टनल जो थाने क्रीक के नीचे है, उसके नीचे 4.88 किलोमीटर का अभी 3 दिन पहले मिनिस्टर साहब जा करके उसका ये कराए थे कि जो ग्राउंड ब्रेकिंग कराए। दोनों इनसे टनल काम कर रहा था एडिट, तो दोनों एक जगह खुला, उसका ये एग्जाम्पल है। मतलब बेसिकली जापानीज टीम भी वेयर सरप्राइज कि इतना जल्दी कैसे रेलवे ने काम किया है, यहाँ पे इंडिया ने कैसे काम किया। अंडर सी टनल का ब्रेक थ्रू मिनिस्टर साहब गए थे, उसका एक फोटो दिखाया है आपको। मेनी इंजीनियरिंग मार्वल्स वी हैव क्रिएटेड। USBRL जिसको कि कश्मीर रेलवे का जो ये बोलते हैं, उसको बोलते 43,000 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट था, 272 किलोमीटर पर किलोमीटर कॉस्ट। इतने टफ टेरेन में, हिमालयन की जियोलॉजी में भी, इट इज़ ओनली 160 करोड़, लेस देन द मेट्रो। मेट्रो में जितना खर्च होता है, टनल में कम नहीं है साइज में, ब्रिजेज में कम नहीं है, फिर भी इट इज़ लेस। और द सरप्राइजिंग इज़ कि इंडिया का हाईएस्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क ब्रिज जो चेनाब ब्रिज है वो इसमें है। इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्ट टनल 12.75 किलोमीटर वो इसमें है। सेकेंड लॉन्गेस्ट टनल वो इसमें है। थर्ड लॉन्गेस्ट टनल वो भी है। टोटल 38 टनल है, टोटल किलोमीटर है 119। स्केप टनल 66 हैं, 943 ब्रिजेज हैं। जो इस एरिया में जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए उसमें 222 प्रोजेक्ट रोड्स किलोमीटर है जो कि गाँव को जोड़ते हैं, जो उस एरिया में थे जिसमें कभी रोड नहीं मिला था। और ये चेनाब, इसके लिए ताली बनता है सबका। ये हिमालयन जियोलॉजी में इसको बनाना बहुत ही टफ था
क्योंकि हिमालयन जियोलॉजी जो है बहुत ही यंग रॉक से बनी हुई है और बहुत ही डक्टाइल उसके ये थे जो रॉक स्ट्राटा थे। बहुत सारे फॉल्ट्स जोन थे, बहुत सारे फीचर्स थे, पानियाँ बार बार लीक करती थी, तो उसमें टनल बनाना, उसमें काम करना बहुत ही मुश्किल था। और ये इसमें हमारे इंजीनियर्स ने काम किया। अभी इसका जो लाइफ स्पैन है 120 ईयर का है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है 5 का, 256 किलोमीटर की विंड स्पीड से भी कुछ नहीं होगा इसको। इनफैक्ट कि उस एरिया में हमने ये भी ऐसा किया है कि अगर कोई उसको बम भी ब्लास्ट करता है तो बहुत बड़ा जो अमाउंट है उसके बम के बाद भी इसको कुछ नहीं होगा, ऐसा बनाया गया है। स्टील यूज किया गया है 30,000 टन। 30,000 टन का स्टील का जस्ट एग्जांपल के लिए दिया है कि अगर 4 एफिल टावर भी क्रिएट करें ना तो 4 एफिल टावर बन जाएगा, जितना स्टील उसके लिए यूज किया गया है। फाइनल कॉस्ट आया है 1,465 करोड़, 117 सेंसर हैं। सबसे खूबी की बात है कि इसके में जो लोग काम कर रहे थे एफकॉन्स और रेलवे की टीम, वो यंग इंजीनियर्स वहाँ बहाल हुए और उसके इंचार्ज बन के बैठे। लेकिन मतलब आज इतना मेहनत करना पड़ा उन लोगों को, इतने दिन तक वहाँ पे अपना खून और पसीना देना पड़ा। ये एफिल टावर उससे 35 मीटर ऊंचा अपना ये, और इसके नीचे 2 चाइना के ये हैं, वो मैंने पहले में दिखाया होगा इसमें, सॉरी। चाइना का निंजने 310 मीटर का है, हाइट का है, और क्विंगलोंग है जो 295 का है। मतलब अभी दूर दूर तक एक बन रहा है जो कि 32 में बन के तैयार होगा, वो हमसे ज़्यादा बड़ा होगा आर्करिज में, लेकिन अभी बना नहीं है। चेनाब ब्रिज का जो एस्पेक्ट है, वो अभी कटरा से हम जो ट्रेन चला रहे हैं कश्मीर तक, उसका इम्पैक्ट ये है कि पहले अगर आप लोग कभी भी गए होंगे फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाज वेरी हाई। 20,000 25,000 ऐसे एयरफेयर्स का किराया आता था। बाई रोड जाना तो बहुत ही मुश्किल था, आज 6 महीने तो बंद होता था बर्फ़ के और ठंड के रीजन में। अभी इसके चलते जब से चला है 3 से 4,000 रुपये आ गया है फ्लाइट का किराया, और वंदे भारत में 1,000 से कम आता है। सेम इज़ द केस फॉर द होटल्स ऑल्सो। जम्मू के होटल्स को प्राइस नहीं मिल पाता था और वहाँ पे 1-1 लाख का कॉस्ट होता था होटल में रुकने का। अब वो अपने आप उसका गिर गया, क्योंकि लोग को जाना है तो इसी से आसानी से चले जाते हैं। ब्रिजेस क्या, दैट्स पम्बन ब्रिज। वो पहले का जो ब्रिज था वो आग ब्रिज था, ऊपर खुलता था और साइड लिफ्ट था। ये वर्टिकल लिफ्ट है। हिंद महासागर में ये ऊपर लिफ्ट करके खोज करके और आसानी से अब इससे ये क्रॉस करके जा सकता है, कोई भी ब्रिजेस क्रॉस करके जा सकता है। ये वाला नया वाला है, ये पुराना था। पुराना पहले ऐसे ऊपर उठता था, इसमें पूरा जंग लग गया था और ये 2 बार ये बह भी चुका था इसका, तो इसका बहुत ही ज़रूरी था। ये मीटर गेज का पहले था, इसको चेंज करके ब्रॉड गेज बनाया, तो इसकी लाइफ स्पैन ख़त्म हो गई थी। इसको ब्रिटिश इंजीनियर्स ने बनाया था पहले, अभी हमारे इंजीनियर्स ने इसको बनाया। दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड में एक जगह और केवल है जिसमें कि सी में ब्रिज बनाया गया है। ये 12वीं सारंग सेक्शन में कुतुब मीनार से भी ऊंचा, 42 मीटर ऊंचा ये ब्रिज है। कुतुब मीनार 72 मीटर्स और उससे 42 मीटर ज़्यादा। ये भी वन ऑफ द इंजीनियरिंग मार्वल है। पीएम साहब ने इसको अभी उद्घाटन किया था जब बोगीबिल है वो, दैट इज़ बोगीबिल। हाँ, वो उतना ऊंचा नहीं है, लेकिन उस एरिया के लिए और हमारे फॉर द आर्मी इट इज़ वेरी, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये एक तो कि आइजोल को जोड़ रहा है जो कैपिटल है मिजोरम का, और दूसरा कि देयर आर मेनी ब्रिज। ये एक ब्रिज का दिखाया है, इसमें कम से कम 16 ब्रिज हैं जो इसके आसपास के हाइट के। नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी, कैपिटल अरुणाचल प्रदेश
ईटानगर जो नाहरलगुन से जुड़ रहा है, वहाँ पे शताब्दी भी चल रही है। त्रिपुरा अगरतला फर्स्ट टाइम केम इन IRBG नेटवर्क। आसाम ऑलरेडी कनेक्टेड है। सेकंड जो बोगीबिल का ब्रिज का बात किया वो मैंने इसमें बताया कि ये पहली बार वहाँ स्टार्ट हुआ। सिक्किम सेवक रैंको में काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। मेघालय वहाँ के जो पॉलिटिकल ये हैं वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे रेलवे लाइन जाए, फिर भी पहली बार मेदी पत्थर में गारो हिल्स का जो पार्ट है वहाँ पे रेलवे लाइन जा चुका है। और बाकी एरिया में आसाम के पोर्शन में ला करके बहुत पहले बन करके तैयार हो गया है कि जो उसकी कनेक्टिविटी है, लेकिन जो शिलोंग को जोड़ने वाला मेघालय की राजधानी है उसमें पॉलिटिकल ये नहीं चाह रहे हैं, तो उसके लिए उसको वो काम रुका हुआ है। मिजोरम बैरबी सारंग पीरम साहब ने अभी उद्घाटन किया। नागालैंड दीमापुर से कोहिमा 82 किलोमीटर का लाइन है, अप्रोक्स 31 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है। मणिपुर जिरीबाम इम्फाल 111 किलोमीटर का है, 55 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है। इसमें भी वर्ल्ड का हाईएस्ट पिलर्स ब्रिज बन रहा है, जो कि जस्ट उसके पहले है, जो कैपिटल है मणिपुर का उसके जस्ट पहले है। लोकोमोटिव मेड इन इंडिया, दिस इज अनदर सक्सेस स्टोरी। अभी 1600 24-25 में हमने लोको प्रोड्यूस किया। जो इलेक्ट्रिक इंजन होता है, डीजल इंजन होता है, वो अगर पूरे वर्ल्ड का देखें तो पूरा वर्ल्ड मिला देना, चाइना को छोड़ करके, चाइना 2000 करता है तो हम लोग बराबर करते हैं। 1600 पूरे वर्ल्ड का है। फ्लीट साइज 10,456 था 14 में, आज 16,000 का है। इलेक्ट्रिक इंजन 12,000 के हैं, डीजल इंजन 4,200 के हैं। PM साहब ने दाहोद वाली जो फैक्ट्री है उसका उद्घाटन किया था। दिस इज मॉडर्न 9,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव टू कैरी 4,500 टन ऑफ कार्गो। और इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये यहाँ बन रहा है और पूरे इंडिया से इसके पार्ट्स आ रहे हैं, बाहर से कहीं से नहीं आ रहे हैं। पूरे इंडिया में हमने लिस्ट बनाया है ये, औरंगाबाद, मुंबई, नासिक, मोटराइज बॉगी यहाँ बन रहा है, ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर मुंबई में बन रहा है, नासिक में ट्रैक्शन कन्वर्टर बन रहा है, होसूर में पेंटोग्राफ बन रहा है, हावड़ा में ब्रेक सिस्टम बन रहा है, वाराणसी में वॉयल कंपोनेंट बन रहा है। ऐसे करके चेन्नई यहाँ तो बन ही रहा है जो मेन है, और बाकी उसके एंसिलरीज ये बन ही रहे हैं, लेकिन पूरे इंडिया से इसके पार्ट्स आ रहे हैं। तो ये ग्रोथ है पूरे कंट्री का। और मेक फॉर द वर्ल्ड बनेगा। यहाँ से हम यूरोप भेजेंगे, USA भेजेंगे, थाईलैंड भेजेंगे, ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। अब जो हमारी 3 नई फैक्ट्री बनी है अभी दाहोद में, मधेपुरा में और मढ़ौरा में, ये तीनों फैक्ट्री में जो हमने गेज रखा है, 3 गेज रखा है। स्टैंडर्ड गेज रखा है, एक अपना ब्रॉड गेज रखा है, एक नैरो गेज रखा है। जो वर्ल्ड के जितने भी लोगों का डिमांड है, मैक्सिमम स्टैंडर्ड गेज है वर्ल्ड में, वो हम यहाँ से बना करके भेजेंगे। मधेपुरा की फैक्ट्री से पहली बार जो ब्राज़ील एरिया के, जो लैटिन अमेरिका का जो सबसे बड़ा आयरन माइन है, उसके लिए लोगों का डिस्पैच हुआ, और ऐसे 1000 लोग जाएंगे। तो दिस इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ कि इंडिया में हम अपना खुद बना रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग अहेड, वी आर एक्सपोर्टिंग ऑल्सो। एक और सक्सेस स्टोरी आपको बताते हैं कि इसमें जो फोर्ज व्हील होता है, जितनी फास्ट ट्रेन चलती है उसमें फोर्ज व्हील लगाना होता है। बाकी कास्ट व्हील हम लोग लगाते हैं, जितने गुड्स वैगन है उसमें कास्ट व्हील लगता है, फोर्ज व्हील लगता है। या तो इंजन है तो उसमें लगेगा फोर्ज व्हील, या फिर जो फास्ट कोचिंग ट्रेन चलती है उसमें लगेगा। तो जितने भी पैसेंजर ट्रेन है, मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, उसमें फोर्ज व्हील लगता है। फोर्ज व्हील्स का हमारा प्रोडक्शन बहुत ही कम था। हमारा रिक्वायरमेंट करीब 1 लाख फोर्ज व्हील का है। और हम डिपेंडेंट थे, वी वर डिपेंडेंट ऑन यूक्रेन, रसिया, कुछ अमेरिका पे। जब ये यूक्रेन रसिया का वार हुआ तो PM साहब ने कहा, तब हमारे पास व्हील मिलना बंद हो गया। तो द क्राइसिस वाज कि हम जैसे वंदे भारत भी बना रहे थे तो हमको बहुत क्राइसिस हो रही थी। PM साहब ने बोला अपना क्यों नहीं हो सकता।
उस समय हम लोगों ने डिसाइड किया कि अपना होना चाहिए। वी टेंडर्ड इट आउट। उसमें केवल ये क्लॉज दिया कि जो व्हील होगा वो हर हालत में जो उसका जो कंपनी का जो मालिक होगा वो इंडियन होना चाहिए। इस छोटे से क्लॉज के चलते लोग टेंडर के लिए आए। टेंडर में वी हैव गिवन द सपोर्ट दैट कि मैं 1 लाख व्हील अगले 25 साल तक लूंगा। आप इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, उसका मतलब बहुत अच्छा है कि मैंने 25 साल का एश्योरेंस दिया। अब आप उससे बैंक लोन, उससे उसके बेसिस पे आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको वो सपोर्ट मिल रहा है और मुझे 1 लाख व्हील मिलेगा, वो सपोर्ट मिलेगा। द बिड वॉज कि 10 लोग पार्टिसिपेट किए। हमको जिस कॉस्ट में अभी मिल रहा है 4 साल के बाद वो फैक्ट्री बनकर तैयार होगी, उससे कम में मिलेगा। मतलब सोचिए कि आप चाइना बना रहा है, यूक्रेन बना रहा है, रसिया बना रहा है, उससे सस्ते में हमारे लोग हमें बना के देंगे। फैक्ट्री का आधा काम बन करके तैयार हो गया है। चाइना में ये चेन्नई में बन रहा है। और जो फैक्ट्री का ऑनर है उसने 4 लाख की कैपेसिटी का प्लांट डाला है। इसका मतलब है कि जो 3 लाख जो व्हील होंगे वो एक्सपोर्ट होंगे और वो compete करेंगे चाइना से, वो compete करेंगे रसिया से, वो compete करेंगे यूक्रेन से। सिमिलरली एक और एग्जांपल देंगे, जो हमारे वैगन्स हैं। हम पहले वैगन देते थे तो वैगन मैन्युफैक्चर तो यहाँ पे कोई नहीं होंगे ना, तो उनको केवल और केवल 1 साल का अपना देते थे कि 1 साल के लिए आप बना लो। और 1 साल का बनाने के लिए देते थे, बहुत हुआ तो 8,000 9,000 वैगन मैक्सिमम। अब भी हमने डिसाइड किया कि मुझे तो रिक्वायरमेंट है ही है, तो मैं 3 साल का क्यों नहीं दूं। 3 साल के देने से आपको जो इंडस्ट्री को जो जरूरत होती है, जो फोर्जिंग प्लांट लगाने का, जो मशीनरी लगाने का, जो बैंक लोन का, वो उनके हाथ में आ जाता है। और द बेनिफिट ऑफ दैट इज कि हर हम और डिमांड वी हैव रेज 30,000 33,000 हर साल किए, और पिछले 3 साल के अंदर 2 लाख एक्स्ट्रा वैगन आए। इसका बेनिफिट आप लोग देख रहे होंगे सीमेंट में, फर्टिलाइजर में, यानी कोल में वैगन की कमी नहीं। आज कोल का जो स्टॉक है पावर हाउसेज में वो हाईएस्ट है। 60 दिन का स्टॉक उनके इस पे पड़ा हुआ है। इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कि ये डिसीजन कि भाई हम अपने इंडस्ट्री को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे। हम चाहते थे हर साल वैगन बने, लेकिन बन ही नहीं पाता था, क्योंकि 1 साल का देते थे कॉन्ट्रैक्ट, बेचारा 1 साल बहुत खींच करके बनाता था, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। जब उसको 3 साल का हम ऑर्डर पहले ही दिन दे दिए, तो नाउ दे आर एबल टू मेक जितना प्रोडक्शन वो पहले साल में करने में बहुत दिक्कत उसको होता था, उसका 3 गुना प्रोडक्शन वो आसानी से करके दे दिया। दैट्स द सक्सेस स्टोरी। और ये बेसिकली गवर्नमेंट और जो इंडस्ट्री है उसका आपस में अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। ट्रेन्स, वंदे भारत, पीएम साहब 2016 में ही हैव गिवन चैलेंज कि भाई ये जो तुम लोग करते हो आईसीएफ कोचेज, जो 30 की टेक्नोलॉजी है, 1930 की टेक्नोलॉजी थी, जो लाल वाला पहले वाला था। एलएचबी 2000 वो 1970 में ख़त्म हो गया था वर्ल्ड में, सब कोई ट्रेन सेट में आ गया था। तो पीएम साहब ने कहा 2016 में कि भाई इंडियन रेलवे आप अपना रेक बनाओ, ट्रेन सेट बनाओ और उसको लाओ बाहर जा करके, और कमीशन खा करके लोग बहुत करते हैं। इंडियन रेलवे ने चैलेंज लिया इसको। 2018 में नहीं बना पाए, 2019 के जनवरी में हमने उद्घाटन कराया इसका। पहली ट्रेन फ्रॉम बनारस, दिल्ली टू बनारस, पीएम साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था। 2 ट्रेन बनाए थे। उसके बाद ये क्या किया गया था कि जो डेमू का स्ट्रक्चर था, जो डीजल मल्टीपल यूनिट होता है, उसको कन्वर्ट करके उसको बनाया था। टेक्नोलॉजीज को हम लोगों ने सीखा, उसको कोशिश किया, सक्सेसफुल रन किया। और उसके बाद उसके डिज़ाइन में जो नेसेसरी चेंजेस हैं, जो बॉगी में चेंजेस हैं, वो किया, जितने डिफेक्ट थे उसको दूर किया।
और फिर नए वंदे भारत का हम लोगों ने स्टार्ट किया प्रोडक्शन, और उसमें अभी तक 156 सर्विसेज चल रही है, कवरिंग 24 स्टेट्स, 260 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 366 यूनिक स्टॉपेजेस। अमृत भारत को अगर देखें जितनी सर्विसेज चल रही है तो ये इंडिया का मैप बना दे रहा है। इसको इंट्रोड्यूस भी किया गया कहीं भी पॉलिटिकल थॉट्स को लेकर नहीं कि यहाँ पे इलेक्शन है, यहाँ पे ये करना है वो करना है, ये अक्रॉस द इंडिया जहाँ जिसका रिक्वायरमेंट था वहाँ किया गया। और दैट इज़ द बेसिक रीज़न ऑफ द सक्सेस स्टोरी कि वंदे भारत को डिस्पाइट कि एसी होकर के भी ये 100% यूटिलाइजेशन से ज़्यादा है। वंदे भारत में ये बहुत फेमस ये है 180 के किलोमीटर में भी स्लीपर है, अभी 179 किलोमीटर के स्पीड पे भी पानी गिरता नहीं है, एकदम इतना स्मूथ है, इतनी बॉगी है और इतना स्ट्रक्चर, जबकि ट्रैक स्ट्रक्चर वही है। क्या इसका दूसरा रेक बन के तैयार हो गया, अक्टूबर में, अब ट्रायल चल रहा है, अक्टूबर में स्टार्ट होगा। अमृत भारत जो वंदे भारत है ये तो वो टेक्नोलॉजी है जिसमें कि इंजन जो है उसके हर 2 कोच के बाद उसके नीचे इंजन है लगा हुआ। अमृत भारत है जिसमें कि जो हमारे पुराने कोचेज रहेंगे LHB के, जिसकी अभी लाइफ 35 साल है, उसको तो फेंक नहीं सकते, वो देश का एसेट है, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके इंजन में हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किया और इसको दोनों तरफ से इंजन लगाया कि शंटिंग में इसमें कोई दिक्कत ना हो, एक्सेलरेशन भी फास्ट हो। और ये सारे के सारे अभी की जितनी कोचेज चला रहे हैं ये सारी के सारी जनरल क्लास की कोचेज हैं या स्लीपर है। इसमें 22 कोच है, 11 स्लीपर है, 11 जनरल है। इसमें जो मास हमारा चलता है, जिसको रिक्वायरमेंट है, जो हर समय एयर अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस का है। अभी 24 सर्विसेज चल रही है 17 स्टेट्स में, 126 डिस्ट्रिक्ट्स में, 204 यूनिक स्टॉपेजेज हैं। थर्ड, ये लॉन्ग डिस्टेंस होगा, ये बाद में अभी चेंज होगा कि जितनी मेल एक्सप्रेस है सब धीरे धीरे इसमें चेंज करेंगे और सब बंदे स्लीपर में चेंज करेंगे। और जो राजधानी शताब्दी है और चेयर कार है वो सब हम लोग अमृत भारत में चेंज करेंगे। ये नमो भारत रैपिड रेल, ये भुज से साबरमती कलर लिखा हुआ है, अहमदाबाद है। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट 2000 के आसपास है और जो लोग खड़े होकर आ सकते हैं टोटल 5000 लोग आ सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हर एरिया जो कि डेवलपिंग है और जो ग्रोथ पोल का काम करेगा उसको जोड़ने वाली ट्रेनें, जैसे राजकोट से अहमदाबाद, सूरत से अहमदाबाद, आबू रोड से अहमदाबाद, जोधपुर से अहमदाबाद, भुज से अहमदाबाद। तो जितने लोग जो इससे जैसे ये इंडस्ट्री सिटी है, इंडस्ट्रियल सिटी है, ये मेडिकल सिटी है, ये कैपिटल सिटी है, तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल के लिए जो लोग चलना चाहते हैं वो 5 से 6 घंटे की जर्नी करके आ जाए वहाँ पे और शाम को लौट जाए अपने घर। तो ये फास्ट ट्रेन चलने वाली AC है, बहुत कम कॉस्ट की। इसका जो कॉस्ट है वो 1500 किलो अमृत वंदे भारत का नहीं, अमृत भारत का बता रहे थे, 1500 किलोमीटर का केवल $4 था अमृत भारत ट्रेन। राजधानी ऐसी फैसिलिटी है, AC नहीं है, लेकिन इट इज़ वेरी गुड और कभी भी आप उसको भीड़ नहीं देखेगी। आई हैव चैलेंज एज ए OSD टू माई यंग जर्नलिस्ट कि गो एंड फाइंड कि उसमें भीड़ दिखा दो हमको। मतलब एक साथ वेस्टिबल है, लोग अपने आप बढ़ जाते हैं। 11 जनरल के कोचेज हैं, लोग यहाँ चढ़ते हैं, आसानी से दूसरी जगह उतर जाते हैं। भारत गौरव ट्रेन्स, ये नया कॉन्सेप्ट है, 2022 में इसको स्टार्ट किया गया था। मेनी सर्किट्स बनाया गया, करीब 40 सर्किट्स बने हैं अभी। गरवी गुजरात है, रामायण यात्रा है, नॉर्थ ईस्ट जर्नी है, ज्योतिर्लिंग यात्रा है, गुरु पर्व है, बुद्ध सर्किट स्पेशल है, अंबेडकर सर्किट्स है। फिर 40 सर्किट बने हैं, बहुत ही सक्सेस स्टोरी है। जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं उसमें छोटे से छोटे का, इसके जैसे कि जो गुरु पर्व है और जो अंबेडकर सर्किट बनाया गया था वो 3 दिन का या 2 दिन का बनाया गया था। जो लोग ज़्यादा लंबा ट्रेवल करना चाहते हैं, रामायण सर्किट सबसे पॉपुलर सर्किट है, वो करीब करीब 15 से 16 दिन का बनता है। अभी इसकी 282 ट्रिप्स चलाए चुके हैं और इसको जो भारत गौरव ट्रेन को जो स्टार्ट कराया गया था
वो था कि रेलवे नहीं चलाएगी, जो भी यंग एंटरप्रेन्योर है वो आगे आए, वो ले ले ट्रेन। तो करीब 15 यंग एंटरप्रेन्योर आगे आए, उन्होंने ओपन किया था हमने पॉलिसी, तो उसमें आगे आए, उन लोगों ने किया। IRCTC भी वॉज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, क्योंकि इसमें किसी को रिस्ट्रिक्टेड नहीं दिया गया था और सबको इक्वली चला रहे हैं। साउथ में जो लोग लिए हैं, जो यंग लड़के लिए हैं, वो उन्होंने बड़ा अच्छे से उसको चेंज किया है, खाने का अरेंजमेंट खुद कराते हैं रास्ते में, और पूरी की पूरी ट्रेन है वो चलाते हैं, और बहुत सक्सेसफुल चल रहा है ये। जो बाकी गोल्डन चैरियट और जो पहले वाली जो हमारी ट्रेनें होती थी, डेक्कन ओडेसी, वो महाराजा एक्सप्रेस, वो तो है ही है। कल्चरल हेरिटेज ट्रेन्स अभी नया कॉन्सेप्ट है, इसको पहली बार हम लोगों ने केवड़िया में इस्तेमाल किया। अभी आपके यहाँ से एक ट्रेन जाती है जो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर तो उसका पुराना वाला है, सबसे पुराना जो स्टीम इंजन था उसका है, उससे स्टीम भी निकलता है, लेकिन है इलेक्ट्रिक इंजन, इलेक्ट्रिक से चलता है, और उसके साथ 5 कोचेज है। उसमें बाहर जाकर के सेल्फी भी ले सकते हैं, विस्टाडोम कोचेज भी है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको अभी हम लोग केवड़िया में चला रहे हैं, इसको लोथल भी चलाएंगे, सो दैट कि यहाँ का ही हो। इसको वडनगर, बरीठा उसमें भी चलाएंगे, सो दैट कि जो लोगों को कल्चरल और जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जानने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ लोग एंजॉय भी करें। वर्ल्ड हर जगह, हर स्टेट में ऐसा प्लान किया गया है कि इस तरह से डेवलप करेंगे। एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हैज बीन डन इन गुजरात। पानागढ़, सोमनाथ, अंबाजी, द्वारिका, ये सब प्लान है चलाने का, नेचर एंड इको टूरिज्म से उसको जोड़ने का। और अंत में इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी द कॉस्ट, जो हम 350 किलोमीटर का एवरेज किया और अगल बगल की कंट्री को जोड़ा, तो 350 किलोमीटर में जनरल में 121 रुपया लगता है, AC चेयर कार में 465 लगता है, और AC स्लीपर में 580 रुपया इंडिया में लगता है। वो पाकिस्तान में जनरल क्लास में जाने में 435 रुपया, मतलब कि 300 करीब 15 रुपया ज़्यादा लगता है। सिमिलरली AC में करीब 200 रुपया ज़्यादा लगेगा, और AC स्लीपर में तो जस्ट दुगना। उसी तरह से बांग्लादेश ढाका चिटगांव का है, 350 किलोमीटर 323 रुपया, 735, 1500। श्रीलंका 350, 413, 885, करीब 40% 100 रुपया में हम अभी आपको रिबेट देते हैं, चाहे किसी में भी जाए। जो कॉस्ट है वो, इसको हम लोग क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं फ्रॉम गुड्स। तो अब ये है कि ये कॉस्ट सब्सिडाइजेशन बहुत दिन तक नहीं चलेगा, लेकिन चूँकि इंडिया का मास इतना है, और जो रेलवे ट्रेवल कराती है, गेस कर सकते हैं कितना लोगों को एक साथ ले जा सकती है एक दिन में? पूरे ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलेशन के बराबर एक दिन में इंडियन रेलवे ट्रेवल कराती है। पूरा ऑस्ट्रेलिया इंडिया के रेलवे में होता है, 2.2 करोड़। थैंक यू। अब क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं हम लोग। नहीं, माइक है। वेरी गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है, जैसे अब मुंबई में देर आफ्टर चर्च गेट एंड मुंबई सेंट्रल देर इज नो रेलवे लाइन, वाई कांट वी हैव दैट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इन अहमदाबाद? हाँ, यानी चर्च गेट के बाद कोई लाइन नहीं है ना सर? चर्च गेट के बाद तो कोई लाइन नहीं चलती है रेलवेज की। लास्ट स्टेशन, जैसे कि टर्मिनस हम अहमदाबाद में बना दें, जैसे कि जो यहाँ से ओरिजिन होता है और डिपार्ट एंड अराइवल वैसे करें, वैसे कर सकते हैं? देखिए, बेसिकली ये वहीं पे संभव होता है जहाँ की सी एंड करती है, सी शोर है। जैसे कि कलकत्ता, वहाँ पे भी आप टर्मिनल देखेंगे। हाँ, जो एरिया अगर आप वैसा करते हैं ना, तो एक एरिया बंद हो जाएगा पूरा। हाँ, अब जैसे अहमदाबाद में
अहमदाबाद का एक एरिया सरवा से होकर के उदयपुर जाता है तो उसको बंद नहीं कर सकते आप। बंद नहीं कर सकते। दूसरा बड़ौदा जाता है उसको बंद नहीं कर सकते। हाँ। तीसरा पालनपुर की ओर जाता है, महसाना को जाता है, उसको बंद नहीं कर सकते। ओके, चौथा वीरंगाम को जाता है। तो एक जगह करेंगे तो दूसरा एंड नहीं हो जा पाएगा ना। कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ऐसा क्या रहता है, ये बेसिकली स्पेसिफिक वहाँ के नेचुरल ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को देख करके बनाया जाता है। ओके, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैंने बहुत अच्छा एक इवेंट भी किया था कुछ साल पहले। जिंदल रेल का इनाग्रेशन हुआ था, तो वो अभी भी ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे रेलवेज इज डूइंग द मच बेटर जॉब देन अदर कंट्रीज रेलवेज राइट नाउ। सो मतलब आपने वो जो Event किया था। व्हील को जो उसके रखने वाला जो ये है उसको किया था, कवर किया था। यानी कि पूरा इवेंट हमने मैनेज किया था। ओके। इसके लिए लास्ट वन क्वेश्चन इज कि आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू बैंगलोर एवरी वीकेंड, एवरी मंथ और एवरी ट्वाइस अ मंथ। मैं एक ट्रेन का नाम लेता हूँ, अहमदाबाद यशवंतपुर। वो मेरा एक सवाल है कि पेयरिंग ट्रेन क्यों रेलवेज नहीं चलाती अभी? कौन सी ट्रेन? पेयरिंग ट्रेन यानी कि सामने से भी एक यहाँ से जो निकली यशवंतपुर के लिए या बैंगलोर के लिए, और यशवंतपुर से इधर एक ट्रेन निकली, वैसा क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए ये तो बेसिकली इसलिए हुआ है ऐसा कि वर्ल्ड ओवर यही देखिएगा कि जैसे हम लोग इन टू इन चलाते हैं ना, वैसा कहीं नहीं चलता है। आदमी को हॉप एंड ये करके चलना पड़ता है, तब पेयरिंग ट्रेन और उसकी गारंटी हम लोग दे सकते थे। यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे यहाँ से अहमदाबाद से मुंबई होते हुए ट्रेन जा रही है अगर यशवंतपुर को, तो होता क्या है कि हमने जब ट्रेन स्टार्ट किया उसके पहले बहुत सारी ट्रेनें चल रही हैं जो टाइम टेबल है, तो आपको एक डायरेक्शन से तो समय मिल गया जाने का, दूसरे डायरेक्शन में उस समय की दूसरी ट्रेन चल रही थी। अब जैसे कि अब यहाँ से हम गोवा जाने का हम ट्रेन का 5 चॉकआउट करते हैं, तो यहाँ से अहमदाबाद से लेके गए हम मुंबई होते हुए गोवा। अब चूंकि इधर से तो मिल गया हमको समय जाने का, उधर से आते समय वो दोपहर के समय में आता है या शाम के समय आता है, तो उस समय पैसेंजर ट्रेन चल रही है उसकी, तो उस पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल नहीं कर सकते ना, तो वो पाथ खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास वो लिमिटेशन है कि जब बाद में कोई ट्रेन इंट्रोड्यूस होता है तो उसकी पेयरिंग नहीं बना पाते, अदरवाइज पेयरिंग बनाने की कोशिश की जाती है। नहीं, ट्रेन में भी फिर उतनी कैपेसिटी जनरेट करनी पड़ेगी, लेकिन इतनी कैपेसिटी कोई जनरेट ही नहीं कर सकता है। इसका आइडियल यही है, वर्ल्ड ओवर यही होता है कि हम यहाँ से मुंबई के लिए डायरेक्ट ट्रेन दें, वहाँ से स्किप करें, हॉप करो अब, और वहाँ से जाने का ये करो। सर बताइए साहब। हेलो सर, अभी जो रेलवे ट्रैक में भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है क्या? जैसे पहले रेलवे ट्रैक्स जॉइंट होता था और अभी इसमें हाई स्पीड आने के वजह से कुछ रेलवे ट्रैक में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैं बताऊं आपको कि जो ट्रैक हमारा 110 का है उसको 130 का करने का है, जो 130 का है 160 करने का है, जो 160 का है उसको हाई स्पीड में ले जाने का। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जब 160 की जो ट्रैक्स है, जैसे कि दिल्ली मुंबई, मुंबई कलकत्ता हावड़ा दिल्ली, ये या अहमदाबाद से मुंबई हो, उसके किनारे किनारे ऑलरेडी फेंसिंग कर दिया गया है। फेंसिंग करना हमारे कंट्री में बिग चैलेंज, दूसरी कंट्री में नहीं होता है, इसलिए क्योंकि लोग अगल बगल होते हैं दोनों ट्रैक के अगल बगल। दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि एक का घर इधर होता है, दूसरे का खेत इधर होता है, तो बहुत सोच करके हम लोगों ने पहले बाउंड्री वॉल करने की कोशिश की, तो देयर वर ह्यूज ऑब्जेक्शन, और हर जगह आप फ्लाईओवर नहीं दे सकते, हर जगह आप अंडरपास नहीं दे सकते, अंडरपास में पानी होता है, देयर आर मेनी इशूज। तो एक सोल्यूशन बनाया हम लोगों ने कि ये जो क्रैश बैरियर है उसको लगा दें, और सक्सेस इज़ वेरी गुड, क्योंकि उसके चलते लोग आसानी से उसमें जो जानवर हैं, जो बाकी लोग हैं वो नहीं जाते, और ये लोगों को बैरियर के रूप में काम भी नहीं कर रहा है। तो दोनों एस्पेक्ट को कवर करते हुए इट्स वेरी गुड, और इसके चलते हम लोग जो 160 के स्पीड का सेक्शन है वो बढ़ा पा रहे हैं, और ये ऑलरेडी प्लान है। अहमदाबाद के डिवीजन के हर रूट में हम क्रैश बैरियर लगा दे रहे हैं, सो दैट कि वो सेग्रीगेटेड है, और वो बेसिकली हमारे बाउंड्री पे नहीं है, बाउंड्री पिलर्स का काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो काम कर रहा है हमारी स्पीड के बढ़ाने का। सर, एक जानकारी कहीं पढ़ा था मैंने वंदे भारत के लिए जब पढ़ रहे थे तब, कि वंदे भारत
का इंजन भी अपना इंडिया में ही बनता है और उसकी ताकत बुलेट ट्रेन का इंजन है उससे ज़्यादा है। ये जो बेसिकली वंदे भारत जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पावर का टेक्नोलॉजी है। हर दूसरा कोच उसका इंजन कोच होता है, इंजन नीचे बना हुआ है। ये सही कहा आपने कि ये पूरा का पूरा इंडिया में बना है और इसके चलते आज जो इंडस्ट्रियल पार्टनर हैं हमारे, दे आर कम्पीटिंग विथ ऑल अदर ये, और उनका जो ट्रैक्शन मोटर है वो वर्ल्ड में दूसरी जगह जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। और जो स्पीड का बता रहे हैं कि जो ताकत की बात कर रहे हैं, तो वंदे भारत का जो एक्सपेरिमेंट किया गया, पहला 100 किलोमीटर का अचीवमेंट 52 सेकंड्स में, बुलेट ट्रेन 58 सेकंड में। अहमदाबाद टू मुंबई मोस्ट प्रोबेबली ये समय लगेगा 2000 वो बताना अभी 29 के आसपास होगा। लेकिन हम पहला एक्सपेरिमेंट जो करेंगे वो बिलीमोरा सूरत करेंगे 2017 में, जो गुजरात में होगा। दैट इज़ फॉर श्योर, और उसमें वी आर ऑन टारगेट। ऑलरेडी उसमें ट्रैक भी बिछ गया है, सब कुछ हो गया। अब सिग्नलिंग का काम चल रहा है, कोच आएगा, ट्रेन आएगी और उस पर चलेगी, ट्रायल होगा जो। Thank you very much, dear audience, and thank you very much, Ved Prakash ji. You have spent a good quality time and shared relevant information. I'm sure all of us will have a good memory for railways, and this session has been recorded. It is on YouTube of Ahmedabad Management Association. We will share it with you, and please share it with the people who have not come here. Few days back I was in Japan, and the transformation of Indian Railways, when I was sitting in the transportation services of Japan, I could not feel anything new because Sir and Railway Ministry is already giving that experience over here. I sat in both the transportation services, Shinkansen and the local, but everything I saw that अच्छा ऐसा तो थलतेज में भी है, ऐसा तो कालुपुर में भी है, and this is from my heart. And this is from my heart. I went first time at Japan, so my international exposure was for the first time. So not for because you are here, but as a citizen of India, as a citizen of Bharat, I felt that આ બધું તો જોઈ લીધું છે, નવું કંઈ આવે તો જોઈએ. So thank you very much, sir. Looking forward for being a part of your journey, and we will always support you. Thank you very much, Ashish bhai, our PR committee member, all the members who have supported. Thank you very much, Gaurang bhai, especially coming from GCCI. Thank you very much, everybody.